Hello students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we'll study about the pseudo order reactions. ठीक है, so the reactions these are the reactions whose actual order is different from the expected. ठीक है, so जो order हम expect करते हैं कि एक reaction का होना चाहिए उससे इसका actual order जो है, जो actual में होता है order, वो different होता है. ठीक है, so हम expect करते हैं by using the rate law expression कि this should be the order of this particular reaction, but the actual order of such reactions that is different. ठीक है, so ultimately we can also say that these reactions they seems to be of higher order but actually they are of lower order reactions. ठीक है, so इसके अंदर first जो है हम pseudo unimolecular reaction जो study करेंगे, so that is what do you mean by the pseudo unimolecular reactions? So these are the reactions in which more than one species are involved in the rate determining step but the order of reaction is one. ठीक है, मीन टू से कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट स्पीशीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती हैं इसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, बट the order of the reaction that is one. ठीक है, so such reactions they are known as the pseudo unimolecular reactions, or you can say the pseudo first order reactions. So and they involve the solvent molecules. और एक चीज़ और है, like these reactions they involve the solvent molecules. ठीक है, ये solvent molecules involve करती हैं, like maybe the reaction or you can say one of the reactant जो है वो that can be the solvent molecule and the because the solvent that is taken in excess, और अगर उसका कुछ अमाउंट उसमें यूज़ हो भी रहा है तो that उसकी कंसनट्रेशन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसीलिए प्रैक्टिकली वी यूज टू सी दैट कि दैट कंसनट्रेशन ऑफ दिस सॉल्वेंट्स दैट सीम्स टू बी अनचेंज्ड. ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन इवन इफ दे आर यूज्ड इन द reactions. So therefore the concentration same way, same thing I have written over here also कि if the this reactions यूजली इस इन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट जो है दैट इज़ यू कैन से टेकन इन एक्सेस, और यू कैन से इट कैन बी द सोलवेंट मोलिक्यूल विच इज़ टेकन इन द excess form and its concentration that is practically unchanged during the reaction. So therefore the concentration of such a reactant does not appear in the rate law for such reactions. So ऐसे reactant की concentration जो है वो rate law में appear नहीं होती है. ठीक है, so further इसको elaborate करते हैं by taking the example. For example, this is hydrolysis of cane sugar. So this is C12H22O11 cane sugar है, sucrose molecule, or you can say water hydrolysis है, so it is made to react with water, so it gives glucose and fructose. Now the rate law that may be given as, अब इसमें सुक्रोज की कंसनट्रेशन भी हमने कंसीडर की है और वाटर की कंसनट्रेशन भी कंसीडर की है. ठीक है, बट द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर जो है वह दैट डज नॉट वेरी मच टू अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन. ये इतनी वेरी नहीं होती है कि इसकी कंसनट्रेशन वेरी करने से रिएक्शन का रेट चेंज हो जाए. ठीक है, सो वी कैन राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन by considering the concentration of sucrose molecule only. ठीक है, so expected order जो है, जो हमने इससे expect किया था like 1 1 1 plus 1 2, so order जो है वो expected order जो है वो 2 है इसका, but actual में इसका order जो है that is 1. but if we see the molecularity, that molecularity is 2 because the two molecules they are colliding each other to give rise to the product, so molecularity is 2. So here again that water that is taken in excess में है, so its concentration may be taken as constant, so therefore they are the first order reactions. ठीक है, और also we can say these reactions, or you can say the reactions having molecularity equal to or greater than 2 but the order of reaction is 1, that they are, these reactions they are known as the pseudo unimolecular reaction. so ये in terms of molecularity भी थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि molecularity
मोलिकुलैरिटी जो है वो दो से ज़्यादा होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, बट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दैट शुड बी 1. सो सच रिएक्शंस दे आर नोन एज द pseudo unimolecular reactions. Fine. So next example related to this pseudo unimolecular reactions is that hydrolysis of ester. So RCO R dash, so ये ester हो गया, water, if we now we are dealing with the hydrolysis of ester, so water is taken, so this acid, carboxylic acid and alcohol is formed. Now the rate of the reaction that can be written as K, rate constant, concentration of ester and water. So this is also one of the way we can write 0 over here. So actual में तो 0 नहीं आएगा, ये this no rate लो जो हमें जो expected है उसमें तो 0 नहीं आएगा, but actual में that is 0. सो एक्चुअल ऑर्डर जो है वो 0 है. सो एक्चुअल में 0 वी कैन पुट ओवर हेयर, क्योंकि एक्चुअल में इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है. सो एक्सपेक्टेड में यहाँ 0 नहीं आएगा. सो 1 + 1 क्या हो गया 2. सो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है, जो इस रेट लो एक्सप्रेशन से हम कंसिडर करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज़ 2, बट द एक्चुअल ऑर्डर इज़ 1. अगेन सेम रीज़न है कि वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, इट्स कंसंट्रेशन that is taken in excess and its concentration does not vary too much to affect the rate of the reaction. So इसकी molecularity भी क्या हो गई 2 होगी, because 2 molecules they are colliding together to give rise to the products. So now एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें molecularity जो है वो ज़्यादा है बट ऑर्डर जो है वो 1 है. सो दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड दैट इज मेड टू रिएक्ट विथ इथेनॉल, then it gives ester and water. So again if we write the rate law expression, so acetic anhydride concentration है, ethanol की concentration है, ठीक है. so actual में तो यहाँ 0 आएगा because this is a solvent. so here I have also written, so it is taken in excess. again the same reason कि concentration जो है that does not vary too much to affect the rate of the reaction. so expected जो है इसके 2 molecules है, तो इसकी 2 पावर यहाँ होनी चाहिए थी. सो एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमारे पास बन गया 3, ठीक है. सो बट एक्चुअल ऑर्डर है कि ये सॉल्वेंट है, कंसंट्रेशन ज़्यादा वेरी नहीं हो रही है, तो एक्चुअल ऑर्डर इज़ 1. बट you see the molecularity in this reaction is 3, 2 + 1, ठीक है. so that is 3. so this is the reaction example of the unimolecular reaction in which the molecularity is 3, ठीक है. so next अब हमें पता चल गया है कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होती हैं. नाउ लेट अस कैलकुलेट द यूनिट्स फॉर द स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस व्हेन मोलिकुलैरिटी इज़ 2, ठीक है. हमने 2 तरह की रिएक्शंस को स्टडी किया है. स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस एक तरह की जिसमें मोलिकुलैरिटी 2 है और दूसरी टाइप में मोलिकुलैरिटी 3 है. सो इसमें हम मोलिकुलैरिटी 2 ले रहे हैं. 2 लेके अगर इसके 2 लेकर के आगे इसके यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है तो हम उसका रेट एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टर. सो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम दोनों की कंसंट्रेशन कंसीडर कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली एक की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, बट एक्सप्रेशन में दोनों आ रहे हैं, ठीक है. सो दोनों को कंपेयर करें तो इक्वलाइज कर दिया हमने इसको. सो के डैश हमने कैलकुलेट करना है क्योंकि दैट इज़ फॉर द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो एस्टर की कंसंट्रेशन कट हो गई, वाटर की रह गई, और के किसके लिए, के यहाँ पर है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो के यहाँ हम यूनिट्स फर्स्ट ऑर्डर वाले लेंगे. सो के फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स है टाइम इनवर्स, ठीक है. और कंसंट्रेशन है वाटर के, इसके यूनिट्स, कंसंट्रेशन के यूनिट्स मोल्स पर लीटर है. सो ओवरऑल हमारे पास यूनिट्स आ गए लीटर्स पर मोल पर टाइम. सो टाइम लिया है यहाँ पर टी, यू कैन राइट द सेकेंड्स ऑल्सो, ठीक है. टी फॉर टाइम, टाइम इनवर्स है तो यहाँ अगर इसके यूनिट्स लेते हैं सेकेंड तो इट विल बी सेकेंड इनवर्स. सो वन इज द सेम थिंग. सो यू कैन राइट सेकेंड हेयर, ठीक है, सेकेंड भी लिख सकते हो आप. देन यूनिट्स ऑफ के रिप्रेजेंट्स द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अब यूनिट्स के यूनिट से हमें क्या लग रहा है कि इस ऑर्डर की रिएक्शन है, कि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है. बट एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है. फाइन. नेक्स्ट
सेकेंड टाइप हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की देखते हैं, दैट इज स्यूडो बाई मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, अब स्यूडो बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, इट मीन्स इसका एक्चुअल ऑर्डर जो है दैट शुड बी 2 बट द मोलिकुलरिटी शुड बी 3 और ग्रेटर देन 3। ठीक है, सो अब इसमें देखते हैं कौन सी एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। अब स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर में स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर में एस्टर्स को जो है वो एल्कलीज के साथ ट्रीट किया जाता है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इथेनॉल इज फॉर्म्ड। ठीक है, देन यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट के यूनिट देखे के डैश फॉर स्यूडो बाई मोलिकुलर रिएक्शंस व्हेन मोलिकुलरिटी इज 3। ठीक है, सो जब मोलिकुलरिटी हमारे पास कितनी है, 3 है। अब इसमें देखें फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन rate that is given by this considering the concentration of these two species. Then pseudo order reaction में अब water that is also included because that is taken as a solvent. Then ester concentration and alkali concentration. अब इन दोनों को इक्वलाइज करते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए किया, सेम हियर। सो इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वलाइज कर दिया। अब एस्टर और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ कट हो जाएगी, बट के यूनिट्स हमने यहाँ पर कौन से लगाने हैं, कौन से यहाँ पर फिल करने हैं, दैट इज़ फॉर सेकेंड ऑर्डर। सो यहाँ मैंने जनरली पुट किया है, जनरली। ठीक है, जनरली ये है कि 1 माइनस एन, एन जो भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए यूनिट होता है उसकी वैल्यू एन की वैल्यू उस रिएक्शन के ऑर्डर के बराबर होती है। तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर के लिए ले रहे हैं तो 1 माइनस 2, सो एन की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब 2 पुट करने के बाद देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, दैट इज मोल्स पर लीटर और -1। सो ये था हमारे पास 1 माइनस एन, तो 1 माइनस 2, तो ओवरऑल हमारे पास हो गया -1 एंड टाइम इनवर्स। सो सेम नीचे कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं मोल्स पर लीटर। सो पूरा कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया मोल्स raised to the power -2 liter square and time inverse, so can be written like this. So these are the units for pseudo second order reaction। ठीक है, pseudo second order reaction के units है, but अगर यूनिट से देखें हम, so these represents a third order reaction. So that's all for this lecture.